Hello, Virgo people. Welcome to my reading. It's a reading based on manifestation, positive affirmation, and followed by a couple of guidances from the universe and angels. Okay, so it's a general reading for Virgos. So it might resonate with some Virgos and it might not resonate with some Virgos. And it might also happen, since it's a reading about manifestation, positive affirmation and guidances. It will be followed by the guidances also. In each step you will get guidance. So ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वर्गोस के लिए ये रीजंस या फिर ये सिचुएशंस लव लाइफ में फिट कर रहा है। कुछ वर्गोस के लिए ये सिचुएशंस शायद प्रोफेशनल लाइफ में फिट कर रहा है। कुछ वर्गोस के लिए फैमिली लाइफ में फिट कर रहा है। कुछ वर्गोस के लिए जनरल लाइफ में फिट कर रहा है या फिर सेल्फ के ऊपर फिट कर रहा है। सो टेक इट एज इट रेजोनेट वर्गोस, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। वंस अगेन आई एम सेइंग दिस टू यू, क्योंकि सब वर्गोस का स्टोरी एक जैसा तो नहीं होगा। Each Virgo will have a different story to say and different story in their life. So please take it as it resonates with your own life story. Okay, Virgos? Hope I've made myself clear, and I'll shuffle all the cards first. I'll be using oracle decks also here. 4 decks I'll be using. One of manifestation, one of positive affirmation, and 2 of guidances, which are oracle decks. Okay, so let's see about your manifestation. First I'll shuffle and place all the cards for you, Virgo people. This is the deck of positive affirmation. Let's see what comes out for you, or in your case. Universe, please guide the Virgo people. Let them know what they need to know. Please let them know what they need to know. What changes do they need to bring in their life in general, or in whatever area they feel like or they need. Please guide the Virgo people, universe. Okay, now the guidances part. Take it, once again I am saying, take it as it resonates, Virgo, because कुछ वर्गोस के लिए ये प्रोफेशनल लाइफ में फिट कर सकता है, कुछ वर्गोस के लिए पर्सनल लाइफ में फिट कर सकता है, कुछ वर्गोस के लिए फैमिली लाइफ में फिट कर सकता है, कुछ वर्गोस के लिए सेल्फ के ऊपर फिट कर सकता है. सो प्लीज़ टेक इट एज इट मैचेस और रेजोनेट्स विद यू. Okay, and the last part, the last deck of cards is of Archangel Michael. This is also a guidance part. Okay, Virgo people, please pay heed to the guidance. I would request you to pay heed to the guidance part, since guidance ही हम लोग के लिए सब कुछ है. जब दिशा सही नहीं लगता है तो गाइडेंस ही हम लोग को सही दिशा दे सकती है. सो गाइडेंस को प्लीज़ इम्पोर्टेंस दे. पे हीड टू दिस गाइडेंसेस जो यूनिवर्स प्रेजेंट कर रहा है आप लोगों के लिए. Okay, fine. So I'm done with presenting the cards. Let me see what has come out. Okay, starting with the first card, that is manifestation card. Change your whole life with gratitude. Virgo people, it is being asked. Change your whole life with gratitude. Certainly. Gratitude is riches and complaint is poverty. Gratitude in the sense, say thanks to the universe. जो भी हुआ आपकी लाइफ में, जैसा भी आपका लाइफ है, पे ग्रैटिट्यूड. अच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरा है उससे भी हम लोग सीखते हैं ना.
isn't it? We learn lessons from that and then we move ahead. यही उचित है, ऐसा ही करना न्याय है अपने आप के साथ, isn't it? सो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड बोलिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, थैंक्स बोलिए, और ऐसा करने से आपका होल लाइफ चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप अगर ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, थैंक्स बोलेंगे, तो अपना अच्छा स्वभाव या अच्छी वाइब्रेशन आप बाहर ला रहे हैं, अपने सोच में पैदा कर रहे हैं, अपने इंटेंशन में पैदा कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स में पैदा कर रहे हैं, तो वही वाइब्रेशन आपके चारों ओर फैलेगा, आपके शरीर में फैलेगा एंड इवेंचुअली आपके होल लाइफ में फैलेगा। तो इससे अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता इससे। So change your whole life with gratitude, Virgo people. Gratitude is riches and complaint is poverty. जितना कंप्लेन करेंगे खुद से, दूसरों से, यूनिवर्स से, उतना ही खराब नसीब होगा। यूनिवर्स का यही कहना है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही मानना है, यही प्रिंसिपल है। और जितना थैंक्स बोलेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, उससे आपको और बेहतरीन जीवन यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा आपको। इट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ योर होल लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर दिस, वर्गो, इट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ योर होल लाइफ। Whether it is your health, whether it is your job, whether it is your relationships, or whether it is your money, कुछ भी एरिया हो, हर एक फील्ड में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, हर एक सिचुएशन के लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, कंप्लेन मत कीजिए। कंप्लेन करेंगे तो आपकी सोच में नेगेटिव विचार आएगा, नेगेटिव थॉट्स। कंप्लेन करना मतलब क्या होता है? वो तो नेगेटिव थॉट ही है ना, तो उससे नेगेटिव एनर्जी पैदा होगा, लाइफ में नेगेटिविटी भरा हुआ रहेगा फिर। तो ऐसा मत कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट कीजिए। पे ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स टू यूनिवर्स बिकॉज दैट इज़ द गोल्डन रूल फॉर योर होल लाइफ। बी इट एनीथिंग, बी इट योर हेल्थ, बी इट योर जॉब, बी इट योर रिलेशनशिप, बी इट योर मनी, whatever it is. Okay, moving on to the next card of positive affirmation. It says, I am worthy of love. I am worthy of love. Virgo people, respect and kindness. I am worthy of love, respect and kindness. Certainly you are. Certainly we all are. We all are worthy of love, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। अपने आप को अनलव्ड मत फील कीजिए या करवाइए, डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, या फिर मत ऐसा सोचिए कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। खुद अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए, दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी। और कौन आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ये सब बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका सोच है, ये उन्हीं तक सीमित रहने दीजिए। आप क्यों बेकार में दूसरों की सोच को लेके परेशान होंगे? इज़न्ट इट? इट्स अ फुलिश एक्ट और फुलिश वे ऑफ थिंकिंग, वर्गो पीपल। सो थिंक दैट आई एम वर्दी ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। ये आपके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन का ये कार्ड उठ के आया है, तो इसे आप अपना प्रैक्टिस बनाइए, डेली बेसिस पे चर्न कीजिए लाइक अ मंत्रा, बोलिए मन ही मन में सॉरी, दिन में कई बार बोलिए, रिपीट कीजिए, या फिर लिखिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, एक डायरी मेंटेन कीजिए। आज से अगर नहीं किए हैं तो आज से इसे शुरू कीजिए, इस प्रैक्टिस को, तभी जाके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में ये थॉट बैठेगा और तभी जाके मैनिफेस्टेशन पॉसिबल होगा। Because this is all about positive affirmation in your life. Okay, Virgo people, and it says, मैं once again repeat कर रही हूँ, it says, I am worthy of love, respect and kindness. अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं अपने बारे में, तो आगे से या फिर अब से ऐसा ही सोचें, अपने आप को एम्पावर कीजिए। Moving on to the guidance part, let's see.
कंपैशन, सेल्फ केयर, सिंप्लीफिकेशन, ब्यूटी। देखिए यहाँ पे भी यही बात आई है। यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू बी कंपैशनेट टूवर्ड्स योर सेल्फ एंड ऑब्वियसली टूवर्ड्स अदर। जो इंसान अपने ऊपर कंपैशनेट है वो दूसरों के ऊपर भी, दूसरों के प्रति भी है। जो खुद के लिए केयर करता है दूसरों के लिए भी केयर करता है। सो सेल्फ केयर डेवलप कीजिए, कंपैशन अपने अंदर पैदा कीजिए, जनरेट दैट काइंड ऑफ थॉट्स, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स और इंटेंशंस विद इन यू। शायद हो सकता है आप बहुत हार्ड हैं अपने आप को लेके, वो पीपल, डोंट बी सो। कंपैशन पैदा कीजिए, सेल्फ केयर पैदा कीजिए, लाइफ को बहुत सिंपल कीजिए, डोंट कॉम्प्लिकेट लाइफ। Since this card has come out for you Virgo people and it is mentioning of simplification, सिंप्लीफाई करेंगे तो लाइफ बहुत बेहतरीन होगा, बहुत इजी होगा आपके लिए, नहीं तो डिफ़िकल्ट ही रह जाएगा। थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, हल्का रखिए थॉट्स को। नेगेटिव थॉट्स हमेशा जानिएगा बहुत वेट कैरी करता है और पॉजिटिव थॉट्स उतना ही लाइट वेटेड होता है। हमेशा ये जानिएगा इस बात को। हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं ना, आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग बहुत कुछ ये सब स्पिरिचुअल लॉज के बारे में नहीं जानते हैं। तो प्लीज़ ये जो गाइडेंस आपको मिल रहा है, प्लीज़ इसे लें, अपने लाइफ में फॉलो करें और अपने लाइफ को और बेहतरीन बनाएं। ब्यूटी, यहाँ पे भी आया आई एम लव्ड, यहाँ पे भी आया आई एम वर्दी ऑफ लव। हो सकता है यू आर फीलिंग अनलव्ड वर्गो पीपल, यू आर डिपेंडिंग ऑन अदर पीपल, डोंट डू दैट। लव योर सेल्फ, सेल्फ केयर, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ लव, दिस इज वॉट इज बीइंग आस्क्ड बाय यू बाय द यूनिवर्स। दिस इज वॉट इज यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ गाइडेंस। This is a blessing in disguise. This card says this is a blessing in disguise. Be patient and have faith that your angels have this situation under control. What will come is far better than you dare to dream. This is a blessing in disguise. Blessing in disguise का मतलब क्या होता है कि जो आपके साथ हुआ है वो तब आपको लग रहा है शायद गलत हुआ है कुछ आपके साथ, ऐसा हम लोग को लगता है। हम लोग हिडन मीनिंग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आगे अगर जाके देखें तो तब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि नहीं, जो हुआ था मेरे साथ या फिर हुआ है मेरे साथ वो बिल्कुल सही हुआ, वो बिल्कुल सही हुआ। सो दैट्स वाई इट इज़ बीइंग सेड एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हिडन फॉर्म में ब्लेसिंग है, लेकिन हिडन फॉर्म में, संग संग इमीडिएट रूप में पता नहीं चलता है कि ये मेरे लिए दुआ है या फिर ब्लेसिंग है। बाद में कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन लाइफ में आता है कि बाद में पता चलता है कि अरे मेरे साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। इसीलिए आज मैं इस मोड़ पे हूँ, इस अच्छाई के मोड़ पे हूँ, अच्छाई के रास्ते में हूँ। आज मेरे कदम इसीलिए अच्छाई के रास्ते पे है। तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। टेक इट इन दैट वे। यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू लुक इट in that way, have that kind of a perspective. Okay, it's a blessing in disguise. So Virgo people, this was all about your reading. Hope it helped you and you liked it. Hope it guided you. And once again I am telling you, please pay heed to the guidance in order to enhance your life, improve your life and better your life, Virgo people. So make the necessary and needful changes whatever is required in your case, क्योंकि हर एक वर्गो का अलग अलग स्टोरी है। किसी के प्रोफेशनल फील्ड में प्रॉब्लम्स चल रहा है, किसी के पर्सनल लाइफ में, किसी के लव लाइफ में, किसी के सेल्फ के ऊपर प्रॉब्लम्स चल रहा है। सेल्फ को लेके कभी कभी हम लोग सफ़र करते हैं, गिल्ट में रहते हैं, बहुत तरीके का सिचुएशन पैदा होता है लाइफ में, है ना। एक दो तरीके तो नहीं है, बहुत बहुत अलग अलग तरीके होते हैं सिचुएशंस। तो जो भी सिचुएशन हो,
दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जिस वर्गों के साथ जैसा रेजोनेट कर रहा है आप लोग प्लीज़ उस हिसाब से ले और अपने लाइफ में चेंजेस लाइए, नेसेसरी नीडफुल चेंजेस कीजिए, अमेंडमेंट्स कीजिए और अपने लाइफ को और बेहतरीन बनाइए. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वर्गो पीपल for your changes, positive changes, and positive affirmations in your life. And see you in my next reading. Till then, take care, bye bye, and wish you a very happy Diwali.